सर वो नहीं, the इसके नीचे तो solution सॉल्यूशन है। repelled away from origin, REPELLED. Repelled away from origin. In this case, the origin is referred to as unstable node. Okay, so basically, you in case one is deals with real non-zero. Okay, so this is either this is not equal to zero, either less than or greater than zero. Okay, so this case one deals with the real non-zero eigenvalues of your canonical matrix B, which are either both positive हो या both negative हो. तो आपका non-zero eigenvalues either both are positive or both are negative. ये चीज हम डील करते हैं अपने केस फर्स्ट में. Okay, so now in case second, the next page, so basically in next case 2, we consider the case when both the eigenvalues are real non-zero but opposite sign. Okay, तो केस 2 में हमें देखना है कि वो रियल हो, नॉन जीरो हो, बट अपोजिट साइड्स के हो. ओके, सो हियर आप लिख सकते हो कि बोथ eigenvalues are real, non-zero, but opposite sign. Okay, so here your matrix B is suppose of this type, canonical matrix B of that type, with anyone is less than 0, and suppose lambda is less than 0 and mu is greater than 0. Okay, so in that case, then the phase portrait this look like this type. Suppose this is Z1 and Z2. Okay, so here your lambda 1 and lambda 2. So here lambda 1 is less than 0. So this Z1 corresponding to this lambda 1. This lambda 1 is less than 0. This means here our this towards the origin when x tends to 0. Okay, so this tends to origin when x tends to infinity due to this negative 1. Okay, and this is positive 1. So this is outward direction. So for Z2, this goes towards outward direction. So this is from outward direction by this mu, because mu is greater than 0. When x tends to infinity, your solution goes to infinity. Okay, so here in this sense, your curve is, when this curve is, so this is towards origin, but here this is goes to here. So this is your phase plane analysis of this type of. Okay, so here एरो कैसे हो रहा है वो और एक बार बता दीजिए ना. यस सर, एक बार फिर बता दीजिए इसको. एरोस का डायरेक्शन. एरो की डायरेक्शन. यस सर. ओके ओके ओके. सो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि लैम्डा अगर आपका लेस देन 0 है, लैम्डा अगर आपका लेस देन 0 है, तो उस सेंस में आपका जो Z1 सोल्यूशन होगा, दैट Z1 सोल्यूशन इज समथिंग कांस्टेंट e टू द पावर लैम्डा x. दिस इज द सोल्यूशन बेसिकली. एंड व्हाट इज Z2 इज C2 e टू द पावर mu x. ओके, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, तो ये तो आपको पता ही है. तो व्हेन दिस लैम्डा इज नेगेटिव, व्हेन लैम्डा इज नेगेटिव, तो और आपका जब ये लैम्डा नेगेटिव है और आप x टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, तो दिस Z1 टेंस टू 0. ओके, व्हेन Z1 आपका कहाँ जाएगा? व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी, दिस Z1 टेंस टू 0. दिस मींस ये Z1 जो है ये x टेंस टू इन्फिनिटी फॉर लोअर वैल्यू ऑफ x, दिस Z1 गोज टू दिस पॉइंट 0. तो इसलिए हमारा जो डायरेक्शन है एरो का, वो टुवर्ड्स क्या होगा? मेरा ओरिजिन होगा.
Okay, and here Z2, when this mu is positive, so exponential of some positive, when x tends to infinity, this becomes infinity. So Z2, when x is large, this goes here, the solution goes to here towards the infinity in both direction. Okay, तो अब हम ये कोई पॉइंट हम लेके चले यहाँ से, तो ये यहाँ पे इसका फेस प्लेन क्या हो, ये किसकी ओर जा रहा है, ये टुवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, बट ओरिजिन पे नहीं होगा, ये फिर यहाँ पे आके क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड में। तो ये आपका कर्व कुछ इस तरह से फेस प्लेन इसकी एनालिसिस ये होगी कि आप जब इसको ड्रॉ करोगे मैटलैब में, तो ये इस साइड तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, और इधर क्या है, टुवर्ड आउटवर्ड टू अवे फ्रॉम दिस ओरिजिन। तो कर्व आपकी इस तरह से होगी। जब इसको फेस प्लेन आप एनालिसिस आप जब ड्रॉ करोगे, तो कुछ इस तरह से आपके कर्व ड्रॉ होंगे। सर आपने लास्ट डे जो मैट्रिक्स दिया था ना ए और बी का, उसका डायग्राम दो स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है, ऐसे हो रहा था। किसका वो ए इज बट सर वो दोनों इक्वल और लेस देन 0 के लिए था, ये दूसरी कंडीशन है। केस फर्स्ट में हमने ये दिखाया ना, केस फर्स्ट में क्या था, केस फर्स्ट में ये था कि आपके दोनों दो आपके आइगन वैल्यूज थे, वो दोनों आपके क्या थे, लेस देन 0 थे। तो लेस देन जीरो है तो वो टुवर्ड्स क्या होंगे, मेरे ओरिजिन ही होंगे, टुवर्ड्स पर क्या होंगे, वो ओरिजिन ही होंगे। तो आप देखो Z1 और Z2 में हमने उसके जो 3 केसेस जो किया था, वो दोनों हमारे लेस देन 0 हैं। ओके, और वहां पे डिपेंड करता है कि म्यू और लैम्डा क्या है, एक दूसरे से बड़े हैं, छोटे हैं, बराबर हैं। तो उस केस में हम अलग अलग चीजें वो हम डायग्राम में बना रहे थे। बट आप हर एक केस में देखो, जो केस फर्स्ट में हमने 3 पार्ट्स किए थे, उस तीनों में आप अगर ध्यान दो तो सब में हमने यही एरो इनवर्ट डायरेक्शन किया था। क्यों? क्योंकि Z1 और Z2 वो क्या थे, टुवर्ड्स द ओरिजिन थे। अब ये कर्व की टेंडेंसी क्या होगी, वो सभी के सभी ओरिजिन पे तो जा रहे हैं, बट वो कैसा एंगल होगा उसके लिए हमने थीटा निकाला था। वहां पे हमने Z2/Z1 करके लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी किया था। तो उसके लिए हमने वो चीज की थी। ओके, कि कर्व किस तरह से जाएंगे, व्हेन दोनों इक्वल हैं, तो उस सेंस में हमने कर्व इस तरह से स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली थी। ओके, इस तरह से स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली, जहां पे हमारे Z2 और Z1 में एंगल अगर हमारा π/2 हो रहा था, तो वहां पे हमने कुछ इस तरह की कर्व हमने ड्रॉ कर ली। जहां पे हमारा जिस केस में हमारे पास 0 हो रहे थे, उस केस में हमने इस तरह की कर्व हमने ड्रॉ कर ली। ओके, लेकिन सभी क्या थे, टुवर्ड्स द ओरिजिन ही थे सभी में। ओके, और जिस केस में हमारे Z1 Z2 अगर हमारे रियल पॉजिटिव हो, तो उस केस में हमारा Z1 भी क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, और Z2 भी हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, तो व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, तो ये सेंस हमारा क्या था, सभी डायरेक्शन क्या थे, हमारे पॉजिटिव हो गए थे। तो उस चीज को हमने सिर्फ एक लाइन में लिख दिया, वो सारे डायग्राम हमने बनाए नहीं। अगर आप उसको किसी एक केस को अगर आप देखना चाहो, तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे आपके व्हेन Z1 एंड Z2, ओके, एंड व्हेन दिस म्यू एंड लैम्डा, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, ओके, अगर ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो, ग्रेटर देन 0, तो उस सेंस में ग्रेटर देन का सेंस क्या है, दिस इज आउटवर्ड दिस ओरिजिन से हमारा ऐसा ग्राफ होगा। जब ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा तो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो इस सेंस में क्या है, यहाँ पे एक आइगन वैल्यू हमारी क्या है, लेस देन 0 है, तो वो Z1 हमारा टुवर्ड्स द ओरिजिन हो गया। एक क्या है हमारा, ग्रेटर देन है, तो उस सेंस में क्या होगा, मेरा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर भी अब ये लैम्डा और म्यू अगर इक्वल है, तो ओके, इक्वल है, उस सेंस में हमारा ये आपकी जो डायरेक्शन होगी, दैट डायरेक्शन इज आउटवर्ड डायरेक्शन। इस सेंस में आप कर लोगे, व्हेन लैम्डा एंड म्यू आर इक्वल। अगर वो आपके कुछ बड़े छोटे हैं, तो उस केस में दोनों की दोनों ग्रेटर देन 0 है, आइदर लैम्डा ग्रेटर देन 0 और म्यू ग्रेटर देन 0, डिपेंड्स ऑन दिस टाइप ऑफ कर्व बनेगी। ओके, लेकिन ये एरो क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो व्हेन दिस लैम्डा म्यू आर ग्रेटर देन 0, देन हमेशा जो कर्व होगी वो आउटवर्ड फ्रॉम ओरिजिन डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, और जब ये लेस देन 0 है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी। तो ये चीज सिर्फ आपको जिस्ट यही है। कर्व कैसी होगी उसकी, ये डिपेंड करेंगे, उसमें हमने 3 सब केसेस, केस 1 के 3 सब केसेस थे, वो हमने अलग से डिस्कस किया था। केस 2 में आपके कोई भी एक अगर हम ये डायग्राम लें, या फिर हम सपोज एक नेक्स्ट डायग्राम हम ऐसा ले लें, जहाँ पे हमारे सपोज दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2। इस केस में अगर हमने म्यू को सपोज हमने म्यू को क्या किया कि दिस इज लेस देन 0 एंड लैम्डा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस सेंस में हमारा जो एंगल होगा, तो म्यू हमारा क्या है, लेस देन 0। तो इस केस में हमारा ये Z2, बिकॉज म्यू करस्पॉन्ड्स फॉर दिस Z2 सॉल्यूशन, तो Z2 हमारा जो होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, एंड Z1
जो कि ग्रेटर देन 0 है, दिस इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस तरह की कर्व होगी इस सेंस में। तो यहाँ पे अगर आप फेस प्लेन अगर हम ड्रॉ करें तो जो कर्व हमारी इस तरह से आएगी, कुछ इस तरह से चली जाएगी, इस तरह से आएगी, इस तरह से चली जाएगी, इधर से जो आ रही है वो इधर की ओर चली जाएगी। तो इस तरह का डायरेक्शन होगा। और यहाँ पे आप एरो इस तरह से आप बनाओगे, इधर इस तरह से आ रही है, ओके, और इस तरह चली जा रही है, इस तरह से आ रही है, इधर चली जा रही है, इधर से आ रही है, ऐसे चली जा रही है, ओके। तो ये आपका उस सेंस में है, जबकि लैम्डा और म्यू एक अलग अलग साइन के हैं, अलग अलग साइन के। यहाँ पर भी आप देखो तो दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर ये वाला नेगेटिव है फर्स्ट वन, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से एरो होगी। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस तरह से एरो होगी आपकी, ओके। तो यहाँ पे कर्व का डायरेक्शन जो होगा कुछ इस तरह से आप इसको ड्रॉ करें तो इस तरह से आपकी एंगल्स आ जाएंगे, ओके। तो ये चीज है इसमें, क्लियर? सर ये जो लास्ट में आपने बनाया हुआ है, ये लास्ट में कंडीशन क्या है? कहाँ पे इसमें लास्ट में, लास्ट ये हाँ, ये तो हम बता रहे हैं केस फर्स्ट की 3 सब केसेस थे। केस फर्स्ट में हमारे 3 सब केसेस थे। व्हेन लैम्डा और म्यू बोथ अगर हमारे यहाँ पे दोनों हमारे ग्रेटर देन 0 है और इक्वल है, तो हमारा कुछ कर्व इस तरह से होगा, ओके, स्ट्रेट लाइंस आएंगी, बट सभी हमारी क्या होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। ये केस हमने बनाया कि व्हेन लैम्डा और म्यू दोनों हमारी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लैम्डा और म्यू ग्रेटर देन 0 है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल हमारे पास एक ऐसा कर्व बनती है, और एक सब केस में आपने देखा होगा इस तरह का बनी होगी, है ना। यही तो हमने कराया, एक में 0 और एक में π/2 एंगल, ओके। तो इस सेंस में ये डिपेंड करेगा आपका कि क्या एंगल आपके हो रहे हैं। तो उस केस में आप निकाल लोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा निकालने के लिए आप क्या करते हो, थीटा निकालने के लिए आप लिखते हो tan इनवर्स Z2 over Z1 and here limit x tends to infinity. You can find the value of that. Okay, either this is 0 होगा या फिर infinity होगा। 0 होगा तो 0 के केस में हम ये वाला ये प्लॉट कर लेंगे, infinity होगा तो हम ये वाला प्लॉट कर लेंगे। सर ये समझ नहीं आ रहा कि 0 और इन्फिनिटी के केस में ये ग्राफ ऐसे क्यों हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वाला क्यों प्लॉट कर रहे हैं? ये एंगल बना रहा है ना, ये एंगल यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो ये एंगल जो टच कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एंगल आपका 0 हो रहा है, और यहाँ पे ये जो वर्टिकल ये आ रहा है तो tan यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है आपका π/2 हो रहा है करस्पॉन्डिंग बेस, ओके, ओरिजिन पे। तो टेंजेंट जो होगी यहाँ पे लगभग π/2 है, यहाँ पे क्या है आपका 0, ओके। इसलिए वो एंगल जो है हमारा कर्व के लिए है कि ये आप इस तरह की कर्व आप करते हो फर्स्ट 0, ओके। ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड देखना है, तो ट्रेंड तो आपके सिर्फ आइगन वैल्यूज के नेचर से ही पता चल गया कि अगर वो ग्रेटर देन 0 है दोनों तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे, अगर वो दोनों लेस देन है तो दोनों के दोनों इनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो नेगेटिव है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये तो आपका है कि इस एक्सिस का Z1 और Z2 एक्सिस क्लियर है। दोनों कर्व के टेंजेंट के एंगल से उसका बेंडनेस आपको इतना क्लियर हो रहा है। जो एक्सिस हम Z1 Z2 ले रहे हैं, ये Z1 Z2, इसमें ये Z1 टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ये तो आपको क्लियर हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। ये चीज तो आप कर लेंगे, ठीक। अब बात है कि अगर दोनों की दोनों सेम साइन के हैं, जिसमें आइदर दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। तो अगर दोनों नेगेटिव हैं तो सभी के सभी डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शंस में होंगे, ओके। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आउटवर्ड डायरेक्शंस में होंगे। अल्टरनेट है तो जो नेगेटिव है उसके इनवर्ड डायरेक्शन में और जो पॉजिटिव है उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे, क्लियर। अब हमारे पास आ गए केस फर्स्ट में हमने कुछ सब केसेस भी हमने डिफाइन कर ली। सब केसेस में कि इफ लैम्डा एंड म्यू के अगर साइन इक्वल हो तो उस केस में हमारी जो ट्रेस होगी वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगी, ओके। वो डिपेंड्स कहाँ करता है वो हमने दिखा दिया कि वहां से आप एक कांस्टेंट एंगल आएगी, इसलिए आपका एक फाइनली ये हो जाएंगे। इस केस में व्हेन दिस लैम्डा ये एंगल हमने निकाल लिया, कर्व का नेचर कैसा होगा, टुवर्ड्स तो ओरिजिन होगा ही, बट वो कर्व होगी कैसी, तो रफ डायग्राम के लिए हम ये चेक कर लेते हैं कि एंगल हमारा इस तरह से होगा, ओरिजिन इस कर्व की तरह होगा या इस कर्व की तरह होगा। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि किसकी वैल्यू लार्जर है, ओके। तो इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, यहाँ से इसकी वैल्यू x टेंड्स टू इन्फिनिटी में क्या उसका ट्रेंड आ रहा है। तो अगर वो 0 आ रहा है तो हम इस तरह के कर्व्स बना लेते हैं, इस तरह के। अगर वो π/2 में आ रहा है तो हमने इसको वर्टिकल बना दिया। तो हॉरिजॉन्टल कब बनाएंगे,
जब हमारा 0 आएगा तो वर्टिकल कब बनाएंगे, जब हमारा इन्फिनिटी आएगा। ये कैसे निकालोगे, ये वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। ये डिपेंड किस पे करेगा, Z2 tan थीटा। तो आपने यहाँ से निकाल लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z2 ओवर Z1। Z2 की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, Z2 इज something constant, okay, e to the power mu x, here some constant e to the power lambda x, okay। तो इस सेंस में अगर हम देखें, इस सेंस में हम देखें तो हमारा म्यू और लैम्डा, अब इसमें अगर वो इक्वल है, इक्वल है तो दिस इज सम कांस्टेंट c, ओके, उसके लिए हमने स्ट्रेट लाइन कर ली। अगर ये आपका म्यू ग्रेटर देन 0 और लैम्डा म्यू बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो और म्यू बड़ा हो, तो म्यू बड़ा हो तो ऑफ कोर्स सपोज ये दिस इज 3 हो, दिस इज 2 हो, तो यहाँ पे आपका x आ जाएगा। तो व्हेन x इज इंफिनिटी दिस इज इंफिनिटी। तो इस केस में व्हेन लैम्डा एंड म्यू बोथ आर पॉजिटिव एंड म्यू इज ग्रेटर देन 0, उस सेंस में हमारा वर्टिकल डायग्राम बन जाएगा। अच्छा, सपोज लैम्डा हमारा ग्रेटर देन है, तो लैम्डा ग्रेटर देन है तो सपोज मान लो म्यू की वैल्यू 2 है, लैम्डा की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में e की पावर x स्क्वायर आएगा। व्हेन पुटिंग x इक्वल्स टू इंफिनिटी 1 by e की पावर इंफिनिटी दिस बिकम्स 0, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, वर्ट ये हॉरिजॉन्टल वाला आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो तो इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आप देख लीजिए कि वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। बुक्स में क्या किया है, बुक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या है कि उन्होंने लैम्डा और म्यू की साइन के लिए एक ही ग्राफ ड्रॉ किया है, बट वहां पे क्या किया कि देखो जब मेरा म्यू पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है, ओके, तो हमें दिख रहा है कि हमारा वर्टिकल ग्राफ होगा, लेकिन जब म्यू हमारा नेगेटिव है और ग्रेटर देन है तब ये ग्राफ नहीं होगा। लेकिन बुक में क्या कहा है कि सेम ग्राफ ही होगा और डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी और रिवर्स हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने किस सेंस लिया है, मोर नेगेटिव मोर पॉजिटिव, समझ रहे हैं। तो वहां पे लेस देन और ग्रेटर देन का जब आप नेगेटिव साइन लेते हो तो वहां पे ये चीज नहीं है कि बुक में थोड़ी कंफ्यूजन इसीलिए क्योंकि बुक में उन्होंने क्या कर रखा है कि उन्होंने कहा है कि व्हेन लैम्डा इज लेस देन म्यू, ओके, तो इनका सेंस है कि जैसे अब हमने कहा कि अगर ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कर वही होगी, बस डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन उस सेंस में होगा जबकि ये सपोज हमने लैम्डा को हमने मान लिया सपोज 2 पॉजिटिव है और दिस इज 4, ओके, तो कोई बात नहीं, म्यू अगर मेरा 4 है तो यहाँ पे हमारा इंफिनिटी वर्टिकल ग्राफ होगा। लेकिन जब हमारा यही अगर हम नेगेटिव ले लें, लेस देन कर लें, तो लेस देन में म्यू कब ग्रेटर देन होगा, तो म्यू हमारा सपोज हमने ले लिया -2 और इसकी वैल्यू हमने ले लिया -1, तो नेगेटिव के सेंस में। तो अब आप कहोगे कि अरे नहीं ये तो गड़बड़ है, क्यों तो -1 तो इसमें ऐसा है नहीं, तो आप इसको चेंज करो क्योंकि म्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हमने म्यू को हमने सपोज -2 लिया और इसको हमने -4 लिया, तो आप कहोगे हाँ अब मेरा म्यू जो है -2 इज ग्रेटर देन -4, लेकिन अब इसको जरा यहाँ पुट करें तो हमारा म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ -2, ओके, और लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी -4, ओके, तो -4 हो गई, यहाँ -2 हो गई, तो व्हेन इसको आप जब सॉल्व करोगे तो दिस बिकम्स ओके -2 हो गई, -4 हो गई, तो ये ऊपर आया आपका, तो ये हो गया आपके 2 स्क्वायर, तो x टेंड्स टू इंफिनिटी दिस बिकम्स इंफिनिटी। तो उस केस में ठीक है, तो उस केस में भी हमारी क्या होगी, यही होगी, यही केस होगी, ठीक है। तो इस सेंस में भी हमारा π/2 ही होगा, और इस सेंस में हमारा जो है जब वो ग्रेटर देन है तो ये वर्टिकल हो जाएगी, और जब ये लेस देन होगा, म्यू जब आपका लेस देन होगा लैम्डा से, तो उस सेंस में हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, ओके। तो कुछ बुक्स में दिया है कि मोर पॉजिटिव और मोर नेगेटिव, ओके, कुछ बुक्स में दिए हैं ओनली दिस कंडीशन, तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कि मोर पॉजिटिव और मोर नेगेटिव जहां लेंगे तो वहां पे मोर नेगेटिव का केस लेंगे तो -4 हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है, हमने देखा है अलग अलग बुक्स में थोड़ा सा अलग अलग उन्होंने अपना यूज कर लिया है, तो उसमें कंफ्यूजन की बात नहीं। तो ये सब कंसेप्ट आप छोड़ ही दीजिए, सिंपल आपको क्या करना है, आप यहाँ से एंगल निकालिए, ये सारे कंफ्यूजन की पार्ट है, मोर नेगेटिव मोर पॉजिटिव, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन होगी कि अरे नहीं तो -2 तो ग्रेटर देन है आपसे -4 में, लेकिन वो बताएंगे नहीं दिस इज मोर नेगेटिव देन दिस, क्योंकि ये 4 हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है, तो ये सब चीजों को आप छोड़ दीजिए। आप सिंपल क्या करें, आपके पास λ1 λ2 सोल्यूशन है, whatever the value of theta के लिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी z2 by z1, ओके, सो हियर लिमिट पुट कर लिया, यहाँ पे आप सिंपल सॉल्व कर लें और x टेंड्स टू इंफिनिटी देख लें फॉर
लैम्डा आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जिसके लिए भी रैंडमली वैल्यूज ले लें, उसको सॉल्व कर लें। अगर वो हमारा इन्फिनिटी आ रहा है तो हम वर्टिकल कर्व ले लें, अगर वो हॉरिजॉन्टल आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल ले लें। कहाँ पे? जहाँ पे हमारे लैम्डा और म्यू हमारे रियल हैं, नॉन जीरो रियल और बोथ साइन, दोनों की साइन क्या हो मेरी सेम, तो उस केस में हम ये चीजें हम करते हैं। अदरवाइज अगर वो हमारे नॉन जीरो रियल है बट अपोजिट साइन के हैं तो हमारे पास यही दो कंडीशंस होंगी। ओके, इस केस में हमारे पास आइदर दिस और दिस। ओके, जब वो सेम साइन के हैं आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस सेंस में हम यहाँ पे अलग अलग चीजें यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे इक्वालिटी और बड़े और छोटे की बात हो सकती है। लेकिन जब यहाँ पे अपोजिट साइन है तो ऑफकोर्स एक बड़ा ही होगा एक छोटा ही होगा। तो ये चीज है। यहाँ पे क्या है कि वो चीजें सेम साइन के अगर दो वैल्यूज हैं तो आइदर बोथ आर इक्वल या फिर दोनों में से एक बड़ा एक छोटा हो सकता है। ठीक, तो इसलिए हम ये चीज किया है केस 1 के लिए। तो केस 1 में हमने 3 सब केसेस उसमें ड्रॉ किए और दिस इज केस 2। केस 2 बहुत ही सिंपल है। इसमें अगर आपकी डिफरेंट साइन के हैं तो जो नेगेटिव है वो टुवर्ड्स ओरिजिन करिए, जो पॉजिटिव है उनको आउटवर्ड डायरेक्शन में करें। इस तरह की फेस प्लेन उनकी होगी। ओके, तो ये रफ स्केचिंग है। रफ स्केचिंग, एग्जैक्ट स्केचिंग आप जब मैटलैब सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट आपको ये सारी आपको कर्व्स यहाँ पे दिखेंगी पूरी। ओके, तो दिस फॉर ये जो वैल्यू है, ये आपने ये कर्व जो ड्रॉ किया है सर हेलो सर, मैथलैब से सर आप करवाएंगे या सर जो मैथलैब पढ़ाते हैं वो लोग? मैटलैब जो कराते हैं वो करा देंगे, नहीं तो हम ही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर स्टेप बता दीजिए ना मैटलैब में कैसे करना है। हाँ, क्या क्या स्टेप बता दीजिए ना एक दो कि मैटलैब में हमें कैसे करना है इसे। हो जाएगा। वो लैब वर्क है। लैब वर्क आपको कौन कराती है? ज्योति कराती है या फिर मंजरी जी कराती है? कौन है लैब में? आपको कौन देखता है? रुचि लेखा मैम। रुचि लेखा। रुचि लेखा क्यों? शायद पीएचडी स्कॉलर है। सर ज्योति में मतलब पढ़ाती है। ओके, और लैब कौन कराता है? लैब रुचि लेखा मैम ही कराते हैं, मतलब मैथ लैब रुचि लेखा मैम ही पढ़ाते हैं। पहले बेथानी सर पढ़ाते थे पर अभी रुचि लेखा मैम पढ़ा रहा है। अच्छा, ठीक है, तो मैं बात कर लूंगा, वो रिसर्च स्कॉलर्स है, मैं उनसे बात कर लूंगा। तो वो आपको एक दिन जो है आपको ये मैटलैब में ये करा देंगे। और अगर वो नहीं कराते हैं तो उसी पीरियड में हमारा जो रिसर्च स्कॉलर है, ओके, तो मैं अपने रिसर्च स्कॉलर को बोल दूंगा, वो कनेक्ट हो जाएगा और आपको मैटलैब में कैसे ड्रॉ करना है वो बता देगा। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स को ही सिर्फ प्लॉट करना है ना? सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आप देंगे, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस देंगे, वहां से आप आइगन वैल्यूज निकालेंगे। ओके, ठीक है, जैकोबियन मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं और उसमें कैसे ये और ट्रेस करेंगे वो बताएंगे। ये पोर्शन बेसिकली ये पोर्शन जो है वो डायनामिकल एनालिसिस का है, तो बहुत ज्यादा उसमें हमें नहीं जाना, बिकॉज वो एक फुल लेक्चर है पूरा। तो हमारे जो पीएचडी प्रोग्राम में जो बच्चे आते हैं उनको मैं कराता हूँ तो पूरा फुल प्रोग्राम। तो इसमें आपको ये सारी चीजें नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इस स्टेज पे पीजी लेवल पे आप मैटलैब पे भी बहुत ज्यादा मत फोकस करो, मैटलैब भी फोकस नहीं करना आपको। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो हम वो अलग से करा देंगे, अलग चीज है। लेकिन आपके जो सिलेबस की बात है और पीजी स्टैंडर्ड कोर्स की बात है, वहां पे सिर्फ आपको ये देखना है कि हमारा अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म का है, ठीक है, इस फॉर्म का है, आइगन वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, लैम्डा और म्यू हमने यहाँ पे देख लिया, आइगन वैल्यूज क्या है यहाँ पे, लैम्डा और म्यू मैट्रिक्स को देख लिया। ओके, और यही जो होंगी वही इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी जो टू इस कैनोनिकल फॉर्म में है, तो इसके डायगोनल एंट्रीज इसके आइगन वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे आपने इसका देख लिया आइगन वैल्यूज क्या हैं। तो इफ आइगन वैल्यूज आर दिस टाइप तो हमारा फेस प्लेन ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। तो रफ स्केचिंग सिर्फ आपको आइडिया होनी चाहिए, ये हमारा सैडल नोड होगा, ये हमारा अनस्टेबल नोड होगा, ये हमारा सैडल पॉइंट होगा। ओके, तो सिर्फ आपको इस स्टैंडर्ड पे सिर्फ ये चीज देख करके आपसे बताना है कि किस तरह का होगा, ना ही आपको एग्जामिनेशन में प्लॉट करना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको एग्जामिनेशन में थियोरेटिकल होगा, उसमें आप कहाँ से मैटलैब प्लॉट करोगे, कहीं नहीं कर सकते। आपको हमने सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, अब हमने पूछा कि उसकी स्टेबिलिटी आप डिस्कस करो। तो स्टेबिलिटी डिस्कस कैसे करना है, आपने बी मैट्रिक्स निकाल ली, उसकी आइगन वैल्यूज देख ली, आइगन वैल्यूज से करस्पॉन्डिंग अब आप बता सकते हो। आपको 4 केसेस आपको याद रखने हैं कि अगर आइगन वैल्यूज ऐसी है तो हमारा क्या होता है, कैसा उसका फेस प्लेन होता है, अगर ऐसी है तो कैसा है। तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सिर्फ सिंपल है कि Z1 और Z2 हमने निकाल रखा है,
इसमें हमने देख लिया कि फॉर लार्ज एक्स पे इसका बिहेवियर कैसा होगा, फॉर लार्ज एक्स पे Z2 का बिहेवियर कैसा होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर सभी के सभी एक पॉइंट पे आ रहे हो तो पॉइंट स्टेबल होगा, सभी के सभी आउटवर्ड डायरेक्शन में हो तो पॉइंट हमारा अनस्टेबल होगा। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसी चीज को हमें लगाना है। तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। ओके, हमें बहुत ज्यादा उसके एप्लीकेशन पोर्शन पे हमें नहीं जाना क्योंकि वो काफी बड़ा है। उसके लिए हमें बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ेगी। सिस्टम ऑफ ऑटोनॉमस इक्वेशन में कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे जैकोबियन मैट्रिक्स निकालेंगे, जैकोबियन मैट्रिक्स से कैसे आइगन वैल्यूज निकालेंगे, ओके, कैसे फिर उसमें मैटलैब में हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, फिर कैसे हर क्रिटिकल पॉइंट्स का बिहेवियर देखेंगे। तो वो लंबी कहानी है, काफी लेंदी है। वो आप रिसर्च लेवल में आप यूज करते हो। जो भी बच्चे फाइनली जब 4th सेमेस्टर में जाएंगे, डिजिटेशन जब करते हैं, तो डिजिटेशन में अगर आप जो भी बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो वो वहां जाएगा और वहां पे वो चीजें वो उसका एप्लीकेशन पार्ट वहां पे करेगा। बट इस कोर्स में इतना ज्यादा उसको कवर करना मुश्किल है क्योंकि कोर्स बहुत है। अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक रफ आइडिया चाहिए कि हमारा आइगन वैल्यूज ऐसी हो तो उसकी सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा उसका बिहेवियर होगा उस पॉइंट पे, वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, सैडल होगा एंड व्हाटएवर। ओके, तो बहुत ज्यादा आप मैटलैब के अभी उसमें न रहें क्योंकि अभी आप मैटलैब फर्स्ट ईयर में पढ़ लेंगे तो उसका एप्लीकेशन हम आपको आगे कराएंगे, ठीक। ओके, तो ये फर्स्ट वन जो ग्राफ था, ये ग्राफ था आपका व्हेन दिस इज लैम्डा जो है, ये ग्राफ है आपका लैम्डा जो कि नेगेटिव है और म्यू आपका पॉजिटिव है दिस ग्राफ के लिए। और ये कंडीशन आप लिखा कि व्हेन दिस लिखा ही है हमने म्यू लेस देन, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर डायग्राम है, बस अगर आप देखें तो एरो का डायरेक्शन इधर से इधर गया है, यहाँ एरो के डायरेक्शन आप पे क्या हो गए, चेंज हो गए। क्यों चेंज हो गए? क्योंकि ड्यू टू दोनों की साइन हमारी चेंज हो गई, इसलिए एरो के डायरेक्शन भी हमारे चेंज हो गए। ओके, तो ये आपका केस 2 है। And this origin is called, in this case, this origin is called because this point ऐसे जा रहा है, तो इस origin को हम क्या कहते हैं? origin को हम कहते हैं this is your saddle point. Okay, ये आपके जो point है this is saddle है। saddle क्यों है? स्टेबल कब था? जबकि सभी के सभी आपके एरोस टुवर्ड्स द ओरिजिन थे तो स्टेबल था। जब सभी के सभी आपके आउटवर्ड डायरेक्शन में थे उस पॉइंट पे तो आपका अनस्टेबल था। यहाँ पे कुछ आपके इस ओर आ रहे हैं, कुछ आपके इस ओर आ रहे हैं, बट आपके कुछ जो है आउटवर्ड भी जा रहे हैं, कुछ आपके इनवर्ड है, कुछ आउटवर्ड है, इसलिए आपका ये पॉइंट क्या हो, दिस पॉइंट इज सैडल पॉइंट। तो आपको ये याद रखना होगा कि बोथ आइगन वैल्यूज, आप दोनों केस को अगर हम समराइज करें तो आप ऐसा कह सकते हो कि इफ बोथ आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव and real non-zero, real and negative, then this point is origin is your stable point, stable node. When non-zero eigenvalues are non-zero, real and positive, then your origin is unstable node. And if one is positive and one is negative, then your origin is saddle point. ओके, तो केस 2 में आप इतना चीजें आप कर सकते हो। और ये जो 4 नॉन जीरो ट्रेजेक्टरीज हैं, अगर हम इनको हम मार्किंग करें कि कौन सी हमारी ये जो ट्रेजेक्टरीज आ रही हैं, सपोज दिस ट्रेजेक्टरी इज नोन एज, सपोज इफ वी मार्किंग दिस इज सपोज OA and this is suppose this point is B and this is C and this is D. Okay, so this trajectories this is OA, OB, OC and OD. These 4 trajectories are basically known as separatics. Okay, ये जो 4 आपकी trajectories हैं, इन्हें हम कहते हैं separatics. Okay, separate से बना है separatics. Okay, this is separatics and two of them OC and OA and OC, ये this approaches to origin as x tends to infinity. ओके, आप यहाँ ध्यान दें कि ये दो, इसमें से जो 4 हमारे सेपरेटिक्स हैं, ये जो सेपरेटिक्स हैं हमारे, जो OA और OC, ये ऐसे सेपरेटिक्स हैं जहां पे when x tends to infinity this goes to 0. Okay, but here this other two OB and OD, ये दो सेपरेटिक्स जो हैं आपके, this tends to infinity when x tends to
इन्फिनिटी। ओके, तो या इसको आप अदर वे में हम कह सकते हैं दीज टू सेपरेटिक्स OB एंड OD टेंड्स टू जीरो एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। ये OB और OD जो है ये आपका टेंड्स टू जीरो कब होगा? when x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। अगर हम x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी कर लें और ये मेरा पॉजिटिव हो तो उस केस में हमारा ये जो है म्यू वाले टर्म जो है इस केस में ये हमारा टेंड्स टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे OA, OB, OC एंड OD ये हमारे जो ट्रेजेक्टरीज हैं बेसिकली इन्हें हम कहते हैं फोर सेपरेटिक्स एंड हियर OA and OC these two separatics approaches to origin as x tends to infinity, and here this OB and OD these are the other two separatics. This approaches to origin, this approaches to origin when x tends to minus infinity. Okay, तो यही चीज आप यहाँ पर भी कह सकते हो इस केस में कि here अगर आप मार्किंग कर लें तो this is OA, this is OB, this is OC and OD. So here OA, OB, OC and OD are four separatics. Here OB and OD approaches to origin. This OB and OD approaches to origin when x tends to infinity. But these two OA and OC, this approaches to origin when x tends to minus infinity. ओके, तो ये चीज है आपका इस डायग्राम में। ओके, देन वी गो टू द नेक्स्ट केस व्हिच इज केस थर्ड। ओके, सो इन नेक्स्ट पेज that is case third. So in this case when your B has complex eigenvalues, suppose A plus minus IB, okay, and here B is not equals to 0. So matrix of type A minus B, B and A with this A is greater than 0. Okay, so since the root your eigenvalues is not real, so we have this is now 0 because if this is 0 then this is a real root. Okay, so and here either this is greater than 0 or this is less than 0. So the face portrait, तो इस तरह की अगर आपके पास है और देखा गया है कि अगर हम फेस पोर्ट्रेट इसकी मैटलैब में अगर हम ड्रॉ करें तो इसका जो डायग्राम है दैट इज इस टाइप के होंगे। सपोज दिस इज योर Z1 and this is Z2. Okay, तो यहाँ पे देखा गया है कि हम इसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से डायग्राम होंगे और ये जो है चूंकि हमारा जो यहाँ पे अगर हम B ग्रेटर देन 0 लें तो ये जो स्पाइरल बन रहे हैं इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंड हियर इस तरह से डायग्राम होंगे। ओके, और यदि B हमारा नेगेटिव है, B अगर हमारा नेगेटिव है तो इस सेंस में ओके ग्राफ ऐसा ही है बट दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
this is 0 0. Here b is less than 0, so this direction is clockwise direction, or here anti-clockwise direction. So here this is clockwise. Okay, and here आप ये देखें तो फाइनली इस तरह से जा रहा हो तो ये जा कहाँ रहा है फिलहाल ओरिजिन की ओर, और इस तरह से भी अगर आप देखें तो ये भी फाइनली कहाँ जा रहा है आपके एक्सटेंशन पे जाएगा आपका ओरिजिन के पास. सो इन दिस केस your origin is called a stable focus, and we also know that it is spiral in shape and around the origin. And it tends to origin as x tends to infinity, as x tends to infinity. Okay, तो ये कब होगा जबकि आपका जो a पार्ट है दैट इज नेगेटिव. अगर a अगर हमारा रियल पार्ट नेगेटिव है, ओके यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन गड़बड़ लिख दिया. ओके, विद a इज लेस देन 0. ओके, क्योंकि नेगेटिव होगा तभी टुवर्ड्स ओरिजिन होता है. ओके, ठीक है, दिस a इज लेस देन 0. ओके, तो इस सेंस में हमारा ये स्पाइरल होगा और टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा व्हेन रियल पार्ट इज नेगेटिव. व्हेन रियल पार्ट इज नेगेटिव, ओके, बट इमेजिनरी पार्ट डिपेंड करेगा कि वो मेरा पॉजिटिव है. पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर हमारा नेगेटिव है वो तो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो हमें ये देखना है कि हमारा जो आइगन वैल्यूज अगर मेरा कॉम्प्लेक्स आ जाए, कॉम्प्लेक्स की सेंस में अगर रियल पार्ट अगर उसका नेगेटिव है तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा बट इन स्पाइरल इन शेप. ओके, और ये स्पाइरल हमारा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा. दिस डिपेंड्स ऑन दिस इमेजिनरी पार्ट. तो अगर इमेजिनरी पार्ट अगर हमारा लेस देन है तो क्लॉकवाइज, पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज. तो फाइनली व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी ड्यू टू दिस रियल पार्ट गोस टू दिस, क्योंकि नेगेटिव रियल पार्ट, तो ये हमारा कहा जा रहा है इस 0 पे. तो फाइनली ये जाएगा आपका, ये 0 पे चला जाएगा. ये फाइनली घूमते हुए 0 पे आएगा. ओके, तो इसलिए आपका ये जो है ये आपका स्टेबल है बिकॉज x टेंड्स टू इंफिनिटी. फाइनली दिस कर्व गोस टू योर ओरिजिन. ओके, सेम चीज हम ये करें कि व्हेन a अगर हम पॉजिटिव ले लें, a पॉजिटिव ले लें तो सेम डायग्राम होगा, बट दिस सिचुएशन इज फ्रॉम, ये क्या होगा, ओरिजिन से निकल करके ये आउटवर्ड डायरेक्शन जाएगा. तो एरो जो इनवर्ड डायरेक्शन में है ये हमारे एरोस क्या होंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे. तो व्हेन दिस a इज ग्रेटर देन 0, तो हम इसे नेक्स्ट पेज पे कर लें. नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज so when a is greater than 0, जहां पे आपका आइगन वैल्यूज क्या है, a प्लस ib है. ओके, ये आपके रूट्स हैं. जब a रियल पार्ट आपका ग्रेटर देन 0 हो, उस केस में क्या होंगे, द ट्रैजेक्टरीज लुक सिमिलर. इसलिए हमने एक रफ डायग्राम है तो सिमिलर इस तरह का दिखेगा. ओके, एग्जैक्टली यही होगा नहीं, इस तरह का ट्रेंड होगा आपका. ओके, अब ठीक है, तो एक ये रफ स्केचिंग है आपको सिर्फ जानने के लिए कि दिस इज योर Z1, दिस इज Z2. तो इस सेंस में हमारा इस तरह से होंगे, बट ये फ्रॉम आउटवर्ड डायरेक्शन. दिस इज फ्रॉम आउटवर्ड डायरेक्शन. और ये किस सेंस में है, दिस इज क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज है व्हेन b इज लेस देन 0, तो दिस इज क्लॉकवाइज. ओके, और इसी तरह से अगर हम ये Z1 ले लिया, Z2 ले लिया, और ये हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये ऐसे घूमते हुए स्पाइरल सेंस आउटवर्ड डायरेक्शन में. ओके, और ये क्लॉकवाइज था, उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया. ओके,
This is anti-clockwise direction. Okay, so ये when b is greater than 0, so this is anti-clock. Okay, तो ये आपके डिपेंड करेंगे कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है रियल पार्ट, और बी से डिफाइन होगा कि वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा. सो हियर द ट्रैजेक्टरीज आर spiral and moving away from the origin. Okay, when okay, so in case a is greater than 0, the origin is called an unstable focus. Okay, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि अगर हमने आइगन वैल्यूज निकाला, अगर वो a अगर हमारा नेगेटिव है जैसा उस केस में था, अगर हमारे दोनों के दोनों नेगेटिव थे तो उस केस में स्टेबल नोड था, और यहाँ पे अगर रियल पार्ट अगर नेगेटिव है तो स्टेबल फोकस होगा, और वहां पे अगर हमारे दोनों के दोनों पॉजिटिव थे आइगन वैल्यू, A is less than 0 होगा. is greater than 0 तो अनस्टेबल होगा ना. ग्रेटर देन तो अनस्टेबल है. ये देखिए आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये ओरिजिन से दूर जा रहे हो आप. ये देखो धीरे धीरे आप कहाँ जा रहे हो, ओरिजिन से दूर जाते जा रहे हो. यहाँ पे देखो धीरे धीरे ओरिजिन से क्या हो रहे हो, दूर होते जा रहे हो. ठीक है, अब इसमें स्टेबल फोकस था ना सर. इसके पहले वाले में A is less than 0 था. हाँ, A is less than 0 था, वो स्टेबल था आपका. वही तो मैं कह रहा हूँ, वो डायरेक्शन ये रूट्स हैं. तो रियल पार्ट हमारा बताएगा कि वो हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है. रियल पार्ट अगर नेगेटिव है दैट इज स्टेबल फोकस, अगर वो ग्रेटर देन है तो अनस्टेबल फोकस. ओके, इमेजिनरी पार्ट ओके, इसमें हमारा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस डिपेंड्स ऑन दिस इमेजिनरी पार्ट. अगर वो पॉजिटिव है क्लॉक एंटी क्लॉक, और अगर वो नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज. क्लियर? तो ये चीजें हैं. यस सर. ठीक है, तो ये आपका अनस्टेबल फोकस होगा इस केस में. ठीक, तो नेक्स्ट केस है दैट इज केस 4. तो केस 4 भी हम जल्दी कर दें, आज ये वो ही है, बहुत लंबा से नहीं खींचना, तो जल्दी से केस 4. Case 4. So basically, this case deals with the case when this matrix B has purely imaginary. Okay, जिसमें रियल पार्ट अगर 0 हो जाए तो उस केस में आप क्या करेंगे? Purely imaginary eigenvalues. That is suppose only this part, but here purely imaginary, this means this is not equal to 0. Okay, so here your B is 0 minus B, this is B and this is 0, and here B is not equal to 0. तो suppose इस टाइप के आपके पास हो, और आपका इक्वेशन क्या है? Your equation is, what is your equation? Equation is Z prime equals to BZ. Okay, so basically this implies what is your Z1 prime? Z1 prime is minus B Z2, and what is Z2 prime? अगर आप सॉल्व कर लें इस मैट्रिक्स इक्वेशन को तो ये चीज होंगी. So this gives what is your Z1
तो सोल्यूशन अगर आप देखें तो फर्स्ट वन से आपको मिलेगा a cos bx एंड sin bx एंड सेकेंड वन z2 जो निकलेंगी दैट इक्वल्स टू माइनस a sin bx प्लस b cos bx. Okay, so if we club this together, you find z1 square z2 square that is equals to a square plus b square. Okay, so squaring and adding these two, you get this thing. So here basically these are the basically concentric circle, okay, with centers at the origin. Okay, so here 0 0 origin. What is the phase plane analysis? So the phase portrait are basically family of curve or family of जो भी आपके सर्कल्स आ रहे हैं. ओके, सो फैमिली ऑफ सर्कल्स और एलिप्स जिस सेंस में बने. ओके, तो बेसिकली अगर आपका ये Z1 है, ये आपके Z2 है, तो इस तरह के आपके कर्व्स होंगे. Z1 Z2 तो कर्व जो है दैट डिफरेंट सर्कल. ओके, और ये डिपेंड करेंगे कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. दिस डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ B. तो हियर इफ B इज ग्रेटर देन 0 दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ओके, और यदि आपका दिस इज Z1, दिस इज Z2, ये हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे यहाँ पे, और इनकी जो डायरेक्शन है वो हमारी क्लॉकवाइज होगी. व्हेन B is less than 0, that is this is clockwise. Okay, so in this case the origin is called the center. Okay, जैसे वहां पे स्टेबल अनस्टेबल फोकस की बात करते थे, तो इसको कहते हैं सेंटर फॉर द सिस्टम. ओके, तो ये आपका सेंटर होगा, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस डिपेंड्स ऑन योर दिस B. ओके, सर ये पता कैसे चलता है सर कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये क्लॉकवाइज होगा? सो मतलब ये B की डायरेक्शन देखें. B की डायरेक्शन B का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ओके, B की साइन आपको देखनी है कि B की साइन आपकी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव है तो आप ये डायरेक्शन बनाओगे, नेगेटिव है तो वो डायरेक्शन बनाओगे. सर मतलब पॉजिटिव है तो सर मतलब अबव द y एक्सिस होगा, एंड सर नेगेटिव है तो मतलब बिलो मतलब नेगेटिव y एक्सिस होगा, ऐसा कुछ? नहीं भाई, y एक्सिस इसमें कहाँ आएगा? आपके दोनों, आपको थोड़ा कंफ्यूजन है. हम कह रहे हैं कि दोनों आइगन वैल्यूज अगर λ1 और λ2 अगर इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हमारे क्या है, a प्लस माइनस ib, तो λ1 मेरा a प्लस ib होगा, λ माइनस मेरा a माइनस ib होगा, है ना? ऐसे होंगे ना? यस सर. ठीक है, यस सर. ओके, तो इस केस में अब आपके पास इस वैल्यू को देखना है कि B आपकी मैट्रिक्स में क्या पोजीशन पे यहाँ पे दिया हुआ है. क्योंकि आइगन वैल्यूज तो जो भी आपके हैं, ये λ1 λ2, तो λ1 करस्पॉन्ड टू Z1 और ये करस्पॉन्ड टू योर Z2. ओके, तो आपके कुछ भी हो तो आप ये देखोगे ना कि दोनों की वैल्यू, सपोज मान लो कि B की वैल्यू 4 है, तो उस केस में आपका a प्लस i4 होगा. यहाँ की ये क्या होगा, a माइनस i4 होगा. लेकिन अगर हम 4 की जगह -4 ले लें तो ये वैल्यूज क्या होगी मेरी, a माइनस i4, और ये क्या होगी मेरी a प्लस i4 हो जाएगी. तो बेसिकली आइगन वैल्यूज तो दोनों की दोनों वही रहेंगी, बस उनकी ऑर्डरिंग क्या होगी, चेंज हो जाएगी. क्लियर हो रहा है ना इतना, ये चीज? ठीक है, अगर आप B की वैल्यू पॉजिटिव में लो या नेगेटिव में लो, अगर पॉजिटिव में लेते हो तो λ1 λ2 आएगी, अगर उसकी वैल्यू को नेगेटिव कर लो तो ऊपर भी क्या होगी, वैल्यूज तो वही रहेंगी, बस ऑर्डरिंग चेंज हो जाएगी. λ1 λ2 हो जाएगा, λ2 λ1 हो जाएगा, यही होगा ना? ठीक है, तो इसलिए
कर्व वही होगी, बस उसका डायरेक्शन क्या होगा, बस चेंज हो जाएगा कि क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो वो डिपेंड होगा कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 की तरफ जा रहा है, Z2 Z1 की तरफ जा रहा है, इसलिए उसका डायरेक्शन जो होगा वो चेंज होगा क्लॉक से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ Z1 से Z2 की ओर जा रहा है, वो क्या होगा, Z2 से Z1 की ओर आएगा। तो इसलिए डायरेक्शन क्या होगा, सिर्फ चेंज होता है। ड्यू टू आइगन वैल्यूज क्या हो जाती है हमारी, सिर्फ इंटरचेंज होती है। अगर आप साइन पॉजिटिव और नेगेटिव लो तो सिर्फ आइगन वैल्यूज हमारी चेंज होंगी, तो इसलिए हमारा जो करस्पॉन्डिंग Z1 Z2 जो Z1 की Z2 की ओर जा रहा है वो हमारा Z2 से Z1 की ओर आएगा। बस सिंपल ये चीज है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ज्योमेट्रिकली कैसे दिखेंगी, तो वो जब तक आप उसमें ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको, हमारा यही था कि हम एक लाइन में आपको सिर्फ बता देते कि आइगन वैल्यूज अगर ऐसी हो तो वो ऐसा होता है, ऐसी हो तो ऐसा होता है, लेकिन हमने इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर दिया, थोड़ा सा उसमें डायरेक्टर सिस्टम का हमने दे दिया कि इस तरह की कर्व आपको दिखेगी, ऐसा होगा, इसलिए वो स्टेबल कहा जाता है, इसलिए अनस्टेबल कहा जाता है। ग्राफ कुछ इस तरह के आपको होंगे, तो कम से कम आप सॉल्व करके आप रफ स्केचिंग कर सकते हो कि हाँ ये सेंटर होगा, इसमें आइगन वैल्यूज मेरी प्योरली इमेजिनरी है तो ऐसा होगा, ठीक है। और इस केस में हमारे बी की वैल्यू अगर मेरा इस मैट्रिक्स पर बी की वैल्यू, सपोज आप मैट्रिक्स आपने ऐसा ले लिया, सपोज बी मैट्रिक्स ले लिया 0 -4 4 0, अगर इस तरह की मैट्रिक्स है तो आप तुरंत ये कह सकते हो कि हाँ बी मेरा क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 0, बी मेरा ग्रेटर देन 0 है, दिस मींस ये हमारा सेंटर होगा, प्योरली इमेजिनरी है, और बी मेरा ग्रेटर देन 0 है, दिस मींस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका ग्राफ जो होगा ये होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने बी को ऐसा लिखा है दिस 4 -4 और 0, तो यहाँ पे देखा कि नहीं बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -4 आ रही है, यानी बी मेरा यहाँ पे नेगेटिव है, दिस मींस ये मेरा प्योरली इमेजिनरी गुड सेंस के, और बी यहाँ नेगेटिव है, दिस मींस इसकी ग्राफ कैसी होगी, ऐसी होगी। तो आप तुरंत आप ड्रॉ उसको कर सकते हो, उसको फेस पोर्ट्रेट उसका बता सकते हो, अगर आपके पास बेसिक आइडिया ये है तो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम पे हम इस पे प्रॉब्लम करेंगे, ओके, ठीक है। और हम आपको एक चार्ट भी देंगे पूरा कि इस कैसे हम इसकी न्यूमेरिकल हम इस पे करेंगे, तो पूरी थ्योरी होगी, और आपको हम न्यूमेरिकल एक कराएंगे इस पे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, और एक चार्ट भी देंगे कि क्या आइगन वैल्यूज अगर कैसी हैं तो उनका वो क्या होगा। तो एक तरह से नोट्स है, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।